माता की, भारत माता की বন্দে। প্রথমেই আমাদের ভগবান কৃষকদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, যারা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অন্নদাতা ভগবান কৃষকদের উন্নতির জন্য নানা ধরনের কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম শ্বেত বিপ্লবের অংশীদার হয়েছেন দুগ্ধ পালক कृषकरा, तादेरके आमी प्रणाम एवं वंदन करी। मैं मेरा दिल से देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता, क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने अपने कार्यकाल शुरू किया है अहमदाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन के नाते, आज भारत की आधुनिक भारत की चाणक्य है। मोदी जी का नेतृत्व में 370 और 35A हटाने से लेकर देश को सबसे ऊंचा स्थान पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मैं वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गुजरात असेंबली का ऑनरेबल स्पीकर अशोक चौधरी जी, स्वामी विवेकानंद की धरती में मैं आपको स्वागत करता हूं। शंकर जी है, अशोक जी है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की सभी सम्मानित व्यक्ति को मैं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। नया सरकार की आने के बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 700 करोड़ और जो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम वो लोग कर रहा है, इसलिए थैंक्स टू अमूल परिवार, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। मंचे उपविष्ट आছেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যিনি আমাকে প্রতিনিয়ত এই রাজ্যে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহিত করেন, রাজ্যসভার কৃতি সদস্য মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়, বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি। এই রাজ্যে শিল্প এবং বিনিয়োগ যার নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে, 6 বারের এমএলএ এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স মাননীয় তাপস রায়, আমাদের খাদ্য এবং কোঅপারেটিভের মিনিস্টার অশোক কীর্তনিয়া, আমাদের হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের মিনিস্টার ডাক্তার শারদ মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এবং সম্মানিত মঞ্চ, প্রত্যেককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা সবাই মাননীয় অমিত শাহজির বক্তব্য শুনব, কিন্তু আমি তার আগে 2-4টি কথা বলবো। প্রথমত, এই যে সমবায় বিপ্লব, এই বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা, কৃষক এবং নারী শক্তির হাতে অর্থ প্রদান করা, এটা কখনোই সম্ভব হতো না যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে
আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো। তার আমলে দুটো নতুন দপ্তর তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পরে কেউ ভাবেনি একটা কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আর একটা ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, এই দুটো দপ্তর আগে আলাদা ছিল না, কৃষি দপ্তরের অন্তর্গত ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝেছেন, কারণ তিনি দীর্ঘদিন ধরে গুজরাটের 15 বছরেরও বেশি সফল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাই কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট বিকল্প অর্থনীতির একমাত্র রাস্তা হতে পারে, এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত শাহজি ছাড়া কারো বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমুল পরিবারকে। তারা মাত্র 11টি কোঅপারেটিভ প্রাইমারি কোঅপারেটিভকে নিয়ে শুরু করে 5000 কেজি দুধ সংগ্রহ ছিল। আজকে তারা 880 ডেয়ারি কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, প্রাইমারি সোসাইটিস এবং 9.5 লক্ষ কেজি দুধ প্রতিদিন সংগ্রহ করছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 1,25,000 কৃষক বন্ধু। তার মধ্যে নারী শক্তি বন্ধন 30,000 মহিলা এই কোঅপারেটিভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আজকের এই প্ল্যান্ট আমাদের হাওড়া জেলার ধুলাগড়ে সাঁকলাইলে তার ভূমি পূজনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবং শ্বেত বিপ্লবের সঙ্গে মিষ্টি বিপ্লবও শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ মিষ্টি দই শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় খাদ্য থাকবে না, গোটা ভারতেও ছড়িয়ে পড়বে আমুল ফেডারেশনের হাত ধরে। এটা একটি গর্বের দিন আমাদের কাছে, আমরা कृतज्ञ। मैं मेरा दिल से गुजरात कोऑपरेटिव मिल फेडरेशन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अमित शाह जी को प्रेजेंस में, आप साउथ बंगाल में और नॉर्थ बंगाल में 2 आइसक्रीम प्लांट लगा दीजिए। मुझे पता है 2020 में भारत सरकार ने लेटर भेजी, दी देन चीफ मिनिस्टर नॉट रेस्पॉन्डेड दिस लेटर। हम लोग 15 एकड़ करके जो जमीन आपको जरूरत है, जमीन पश्चिम बंगाल की सरकार दे देगा। आप साउथ बंगाल में 1 और नॉर्थ बंगाल में 1 लगा दीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें खास करके पहले किसानों का फायदा होगा जो मिल्क प्रोड्यूसर है। दूसरा, एक कारखाना लग जाएगा तो इसमें हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। उसका साथ साथ हमारी जो हॉकर्स वेंडर्स है उसको 10-15 हजार लोग को काम भी मिल जाएगा। और उसका साथ साथ बंगाल में जो इकोनॉमिकल बर्बादी करके 34 साल का कम्युनिस्ट और 15 साल का टीएमसी बंगाल को इंस्टॉलमेंट बनाने का काम किया फाइनेंशियली, हमारी और भी जीएसटी आ जाएगा। कृपा करके बंगाल में आप दोनों प्लान लगा दीजिए। जमीन देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार तैयार है। আমি সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে আইসক্রিম প্ল্যান্ট শুধু নয়, আমাদের বাটার থেকে শুরু করে আমুলের যে ধরনের কাজ গুজরাট এবং অন্যান্য জায়গায় হচ্ছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে হচ্ছে,
আসামে হচ্ছে, আজকে সেইটা পশ্চিমবঙ্গে হবে। ডবল ইঞ্জিনের সুফল আপনারা পাবেন। কারা যেন একটা সময় বলেছিল যে পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট হতে দেব না, তারা আজকে বাড়িতে বসে দেখছে আমুল আজকে পশ্চিমবঙ্গে 700 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য। আর পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টি দই ভারতে পৌঁছে দিবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের কাছ থেকে গোমাতার দুধ সংগ্রহ করে। এটাই আজকে পশ্চিমবঙ্গে নতুন পশ্চিমবঙ্গ, নরেন্দ্র মোদীজির পশ্চিমবঙ্গ, ডবল ইঞ্জিনের পশ্চিমবঙ্গ, রাষ্ট্রবাদের পশ্চিমবঙ্গ, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গ। সবাই ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ। माननीय मुख्यमंत्री के अनेक धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का भूमि पूजन रिमोट की बटन दबाकर संपन्न करें। 2004 সালে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হওয়া আমুলের যাত্রা আজ এক নতুন ও ঐতিহাসিক মাইল ফলকে উপনীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির বিকশিত ভারত 2047-এর ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আজ হাওড়া জেলার সাকরাইল ফুড পার্কে আমুলের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আমুল বাংলা ডেয়ারি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বিশ্বমানের দই ও কালচার ডেয়ারি পণ্য উৎপাদনকারী কারখানার ভূমিপূজন মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজির শুভ করকমলে সম্পন্ন হচ্ছে। এই শুভ সূচনা প্রকল্পটিকে জাতীয় গুরুত্বের এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করবে। আমুল বাংলা ডেয়ারি কেবলমাত্র একটি ডেয়ারি প্রকল্প নয়, এটি কৃষকদের আর্থিক সমৃদ্ধি, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং পূর্ব ভারতে শ্বেত বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ের এক সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করবে। আমুল, কৃষকের শক্তি, উন্নয়নের নতুন দিশা। अब माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि वे विभिन्न परियोजनाओं के प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से वितरण करें। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत नवनिर्मित 200 से अधिक डेयरी सहकारी समितियों में एक समिति को पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण। मंचे डेके नेब श्रीमती छवि पात्रों के इनी शीतलपुर महिला दुग्ध उत्पादक समितिर सभानेत्री श्रीमती छवि पात्र तार शंसापत्र ग्रहण करबेन माननीय मुख्य अतिथि माननीय गृह ओ समवाय मंत्री केंद्रीय गृह ओ समवाय मंत्री श्री अमित शाहजीर हाथ थेके। श्रीमती छवि पात्र। इनी शीतलपुर महिला दुग्ध उत्पादक समितिर सभानेत्री। श्रीमती छवि पात्र प्रतिनिधित्व करছেন আরো অনেকের। আজকে সময়ের প্রতিবন্ধকতার কারণে শুধু একমাত্র শ্রীমতী ছবি পাত্রকে ডেকেই আমরা দিতে পারলাম এই প্রমাণপত্র। অনেক ধন্যবাদ। 11 नए पंजीकृत बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों में से एक समिति को पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी से फिर विनम्र अनुरोध है। मंचे डेके नेब कोनुई बांका बहुमुखी ग्रामीण समवाय समिति लिमिटेडेर सम्पादक श्री तुषार कांति घोष महाशय के। तिनी मंचे उपस्थित ग्रहण करছেন तार शंसापत्र माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाहजीर हाथ थेके। अनेक धन्यवाद। और
11 জনের মধ্যে একজনকেই ডাকার সুযোগ হলো, আমরা অবশ্যই বাকিদের কাছে পৌঁছে যাবে শংসাপত্র। और अब माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि वे विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ या उद्घाटन करने का कृपा करें। पहले पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय के कंप्यूटरीकरण परियोजनाओं के तहत ERCS पोर्टल का शुभारंभ रिमोट द्वारा करने का निवेदन। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা এখন WBERCS পোর্টালের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। সমবায় আইন অনুযায়ী নির্মিত এই অ্যাপ্লিকেশনে আবেদন, অফিস ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ, ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত শংসাপত্র, রিয়েল টাইম SMS ও ইমেইল বিজ্ঞপ্তি এবং NCD পোর্টালে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রেরণ সবই হবে দ্রুত, স্বচ্ছ ও অনলাইনে। और अब 1400 मैट्रिक टन कुल भंडारण क्षमता और 5.98 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से 10 जिलों में निर्मित 14 भंडारण गोदामों का शिलान्यास रिमोट की बटन दबाकर करने का निवेदन। কৃষিজ পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা 2026-27 অধীনে রাজ্যের 9টি জেলায় মোট 14টি গুদামঘর নির্মাণ করা হবে, যার সম্মিলিত ধারণ ক্ষমতা 1400 মেট্রিক টন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির জন্য মোট 5,98 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। और अंत में दक्षिण 24 परगना और कुछ बिहार में कुल 73.61 लाख रुपए की लागत से निर्मित 100 मैट्रिक टन के गोदामों का उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी से विनम्र निवेदन करते हैं। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা 2025-26 অধীনে কুচবিহার জেলার পুটিমারি লার্জ সাইজ কোঅপারেটিভ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ইন্দ্রপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে 100 মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি আধুনিক গুদামঘর নির্মিত হয়েছে। প্রায় 73,61,000 টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই গুদামঘরগুলি কৃষিজ পণ্যের সুরক্ষিত সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা पालन करबे। और अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है। मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने भाषण से हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, इतनी बड़ी विजय के बाद आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ ऊपर तक सभी लोग। सोनार बांग्ला के निर्माण के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान शंकर भाई चौधरी जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक कीर्तनिया, माननीय सहकारिता मंत्री पश्चिम बंगाल श्री स्वपन दास गुप्ता, वित्त मंत्री बंगाल सरकार श्री तपस रॉय जी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पश्चिम बंगाल डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग और उद्यानिकी मंत्री पश्चिम बंगाल, हेल्थ मिनिस्टर बंगाल शरद मुखर्जी जी, श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल श्रीमान पंकज बंसल जी, अपर सचिव सहकारिता मंत्रालय डॉक्टर सुब्रत गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शोभा सिंह परमार जी, अध्यक्ष अमूल डेयरी अशोक चौधरी जी, श्री मिनेश शाह जी, श्री अमित व्यास जी, श्री जयंत मेहता जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज बंगाल चुनाव के विजय के बाद मोदी जी की ओर से मैं मिष्टी दही से बंगाल वासियों का मुंह मीठा कराने के लिए यहां पर आया हूं। बंगाल में जो परिवर्तन बंगाल की जनता ने किया है, वो परिवर्तन आजादी के बाद के सभी राज्य के विधानसभा चुनावों से एक अलग प्रकार का परिवर्तन। बंगाल जैसा राज्य जो देश के हर क्षेत्र के लिए एक ज्योति पुंज के समान होता था। शिक्षा की बात करें तो हमारा पश्चिम बंगाल 5 दशक देश से आगे रहता था। आजादी की लड़ाई हो, यहीं से एक बढ़कर आजादी की लड़ाई के सेनानी बंगाल ने दिए। धर्म भक्ति संकीर्तन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ठाकुर और महर्षि अरविंद ने एक अद्भुत परंपरा बंगाल के अंदर स्थापित की। और जब देश के प्रति देशभक्ति और समर्पण की बात हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, बंगाल ने बलिदान देने में भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। देश का वो ज्योति पुंज बंगाल जो पूरे देश का हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता था, यहीं से कवि गुरु टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता था। यहीं पे जगदीश बासु को वनस्पति में जीव है इसका संशोधन करने का सम्मान मिलता था। यहीं से वंदे मातरम के रचयिता ऋषि बंकिम बाबूक ने भारतीय संस्कृति का वो अमर गीत जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डाली, वो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम की रचना की। वो बंगाल लंबे समय से विदेशी विचारों से प्रभावित कम्युनिस्ट सरकार के शासन में रहा। उनसे मुक्त हो गए तो विचारधारा विहीन, भ्रष्ट और करप्ट और क्रिमिनल तृणमूल कांग्रेस की सरकार की चुंगाल से फंसे।
और देखते 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 हमारा सोनार बांग्ला का कल्पना, जिसका स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा था, वो नष्ट हो गया। आज मोदी जी की एक अपील पर 10 साल के संघर्ष के बाद 16 से 26 आज शुभेंदु जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का आंदोलन यहां पुनर्जीवित हुआ है। मैं बंगाल की समग्र जनता को भरोसा दिलाने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लंबे चुनाव अभियान के अंदर जो एक एक वादा किया था और सोनार बांग्ला की संकल्पना को बंगाल की जनता के सामने रखा था, वो सोनार बांग्ला की संकल्पना को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा और समृद्ध, शिक्षित, सुरक्षित और संस्कृत पश्चिम बंगाल की रचना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कालखंड में होगी। मित्रों, आज यहां पर बंगाल के किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बंगाल को विश्व का सबसे बड़ा दही उत्पादन का प्लांट का अमूल ने आज भूमि पूजन किया है। 10 लाख लीटर दही दूध उसका प्रोसेसिंग ये प्लांट के अंदर होगा। 1,20,000 छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक पशुपालक इसका फायदा प्राप्त करेंगे। मैंने तो वैसे ही बात करा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप 15-15 एकड़ के 2 टुकड़े दे दीजिए तो हम पूरे पूर्वी भारत की दूध उत्पादक की सारी उत्पादन की सारी व्यवस्था यहां से करेंगे। एक जमाना था मुख्यमंत्री को पत्र लिखते थे तो कहते थे हम गुजरात को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, ये गुजरात के लिए नहीं है, बंगाल के पशुपालकों के लिए है। इतनी समझ नहीं थी। और परिवर्तन देखिए, मैंने गाड़ी में जाते जाते शुभेंदु जी को कहा, उन्होंने 30 एकड़ भूमि निशुल्क अमूल फेडरेशन को देने का मानकर यहां 2 बड़े प्लांटों का इन्वेस्टमेंट अपने यहां ला दिया है। इससे और 2-2.5 लाख पशुपालकों को दूध का ज्यादा से ज्यादा रेट मिलने का काम होगा।